Hello everyone, in this session we will continue exercise number 7.11. In the last session we have completed up to question number 5. Now question number 6. We need to integrate the modulus function modulus of x minus phi from the 2 to 8. I is equals to 2 to 8 modulus of x minus phi dx. So first of all x minus phi is equals to 0. It implies that x is equals to phi. तो मॉडुलस फंक्शन यहाँ पे चेंज कहाँ पे होगा, x इज इक्वल टू 5 पे. ओके, सो नाउ मॉडुलस ऑफ x माइनस 5 इज नथिंग बट प्लस x माइनस 5. अगर x माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0, इट मीन्स दैट x इज ग्रेटर देन 5, एंड इट इज माइनस ऑफ x माइनस 5 इफ x माइनस 5 इज लेस देन 0, मतलब x इज लेस देन 5. सो अगर हम नंबर लाइन पे प्लॉट करें, राइट, सो यहाँ पे समवेयर 0, 2, 8 एंड 5. ओके, अगर फंक्शन इज लेस देन 5, if function is less than 5 for this one up to 2 to 5, then it gives a minus of x minus 5. and if it is greater than 5, अगर function is greater than 5 मतलब 5 to 8 तक, then it gives value plus of x minus 5. So now I is equals to plus 2 to 8 modulus of x minus 5 dx, which is equals to, इसको हम क्या लिख सकते हैं, so 2 to 5 modulus of x minus 2 dx plus 5 to 8 modulus of x minus 2 dx. Okay, so I is equals to 2 to 5 modulus of x minus 2. if value is less than 5 तो फंक्शन क्या है, माइनस ऑफ x minus 5, तो माइनस ऑफ x minus 5 dx plus 5 to 8 modulus of x minus 2. if greater than 5 value, then it gives plus x minus 5 dx. Okay, so I is equals to, माइनस साइन इज देयर, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 माइनस 5 का 5x, लिमिट इज फ्रॉम 2 to 5, प्लस x का अगेन x स्क्वायर बाई 2 एंड 5 का 5x, लिमिट इज फ्रॉम 5 to 8. सो i इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कर देते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल 5 स्क्वायर 25 बाई 2 माइनस 5 5 जा 25 माइनस 2 स्क्वायर 4 बाई 2 माइनस 5 2 जा 10, राइट, प्लस सेकंड पार्ट 8 स्क्वायर 16, तो 16 बाई 2 माइनस 5 8 जा 40 माइनस 5 स्क्वायर 25 बाई 2 एंड माइनस 25 मॉड्यूलस ब्रैकेट ओवर, राइट, 5 5 जा 25. सो I इज इक्वल टू माइनस 25 बाई 2 माइनस 25 माइनस 4 बाई 2 माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 16 by 2 minus 40 minus 25 by 2 minus minus plus 25. Okay, so I is equals to, minus sign is there, minus 25 minus 24, so 21 by 2, and minus 25 plus 10, that is nothing but minus 50. Okay, plus 16 by 2 minus 25 by 2, so 16 minus 25, that is equals to minus 9, so minus 9 by 2, and minus 40 plus 25, so that is nothing but minus 15. Okay, so I is equals to हो जाएगा minus 21 by 2 minus minus plus 15 minus 9 by 2 and यहाँ पे 8 है ना, तो 8 स्क्वायर दैट इज नथिंग बट हो जाएगा 64. ओके, सो दिस विल बी द 64 by 2. तो अगेन यहाँ पे एज इट इज 5 स्क्वायर दैट इज 4 एंड यहाँ पे 8 दैट इज 64, यहाँ पे 25 एज इट इज, तो यहाँ पे भी 64 by 2, सो 64 माइनस 25 दैट विल बी द 39, तो यहाँ पे प्लस 39. ओके, सो प्लस 39 by 2. Okay, and minus 15, minus plus 15 cancel, so I is equals to 39 minus 21 by 2, so that is equals to 18 by 2. So final answer is I is equals to 18 by 2, which is equals to 9. तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज अ 9.
right? Next, question number 7, I is equals to 0 to 1 x into 1 minus x to the power n dx. x power 1 minus x to the power n dx. So x as it is, 1 minus x power n को अगर मैं एक्सपांड करना पड़ेगा यहाँ पे तो बाइनोमियल अप्लाई करना पड़ेगा अगर x को एज इट इज रहने दूँ, राइट. सो सेकंड मेथड इज दैट अगर 1 माइनस एक्स की जगह पे यहाँ पे x पावर n होता तो काम चल जाता, राइट. सो हमारे पास प्रॉपर्टी जो है 0 टू a f ऑफ x dx दैट इज नथिंग बट 0 टू a f ऑफ a माइनस एक्स dx, वो यहाँ पे हम अप्लाई कर देते. सो 0 टू 1, सो 1 माइनस एक्स, x की जगह पे हमको क्या पुट करना पड़ेगा 1 माइनस एक्स. सो i इज इक्वल्स टू 0 टू 1, x की जगह पे 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स होल टू द पावर n dx, राइट. सो i इज इक्वल्स टू 0 टू 1 1 माइनस एक्स, 1 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस x पावर n dx. Okay, so I is equals to 0 to 1 1 minus x plus 1 minus 1 cancel x power n dx. So this we can write as 0 to 1 x power n minus यहाँ पे 1 है 1 and n, so 1 n plus 1 power x plus 1 x to the power n plus 1 dx. So I is equals to now integrate कर देते तो x power n का x power n plus 1 dividing by n plus 1 minus x power n plus 1 का तो x power n plus 2 dividing by n plus 2. Limit is from 0 to 1. Okay, so I is equals to वैल्यू 1 पुट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, तो 1 पावर n plus 1 दैट इज नथिंग बट 1, तो 1 अपॉन n plus 1 माइनस 1 अपॉन n plus 2 माइनस 0 पुट करते हैं तो a भी 0 दिस 0, सो 0 0 0. ओके, सो नाउ 1 अपॉन n plus 1 minus 1 upon n plus 2. So n plus 2 minus n minus 1 dividing by n plus 1 into n plus 2. So n cancel, 2 minus 1 that is nothing but 1. So I is equals to finally we got here 1 upon n plus 1 into n plus 2. ये हो गया हमारा आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, 0 to pi by 4 log 1 plus tan x. इसको सोल्व करना है. ओके, सो i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan x dx. सेम यहाँ पे जो अप्लाई की थी प्रॉपर्टी 0 टू a f ऑफ x dx इज इक्वल्स टू 0 टू f ऑफ a माइनस एक्स dx, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, राइट. सो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं, ऊपर जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वो सेम 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस log के अंदर है, ठीक है, tan पाई बाई 4 माइनस एक्स dx, राइट, dx. सो नाउ i इज इक्वल्स टू 0 टू पाई बाई 4 log 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, तो tan पाई बाई 4 माइनस एक्स क्या होगा 10x माइनस वाई वाला फॉर्मूला, तो 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x 10y. सो tan pi by 4 minus 10x dividing by 1 plus tan pi by 4 into tan x, right, dx. Tan pi by 4 is nothing but 1, so I is equals to 0 to pi by 4 log 1 plus 1 minus tan x dividing by 1 plus 1 into tan x that is nothing but 1 plus tan x dx. Now LCM ले लेते, so I is equals to 0 to pi by 4 log 1 plus tan x plus 1 minus tan x. डिनोमिनेटर के अंदर क्या हो जाएगा 1 plus tan x dx plus tan x minus tan x कैंसल, तो ऊपर हो गया 1 plus 1 that is nothing but 2. So 0 to pi by 4 log 2 dividing by 1 plus tan x dx. We know that log a by b that is nothing but log a minus log b. So I is equals to 0 to pi by 4, this we can write as a log 2 minus log 1 plus tan x dx, right. So I is equals to this, again we can write as 0 to pi by 4 log 2 dx minus 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx, right. Now 0 to pi by 4 log 1 plus tan x dx that is nothing but integral I,
क्वेश्चन के अंदर वही है. सो वी कैन राइट दिस वन इज I is equals to 0 to pi by 4 log 2 dx minus I, right? So minus I on the left side we can write as a plus I, so I plus I which is equals to 2I, so 0 to pi by 4 log 2 dx. log 2 यहाँ पे कांस्टेंट वैल्यू है, so 2I is equals to इंटीग्रेशन कितना होगा, log 2 कांस्टेंट इंटीग्रेशन x 1 बचेगा तो x, लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 4, so 2I is equals to log 2 मल्टीप्लाई बाय x की वैल्यू पुट कर देते तो पाई बाय 4 माइनस 0, सो विच इज नथिंग बट log 2 इंटू पाई बाय 4, राइट. सो 2I इज इक्वल्स टू पाई बाय 4 इंटू log 2, सो I इज इक्वल्स टू पाई बाय 8 इंटू log 2. आंसर हो जाएगा पाई बाय 2 इंटू पाई बाय 8 इंटू log 2. ये हो गया हमारा आंसर, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटीग्रेशन 0 to 2 x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट. ऊपर जो क्वेश्चन किया x इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर n वाला, सेम यहाँ पे पावर हाफ है, n की जगह पे हाफ वैल्यू पुट करना है, दैट्स ऑल, वही. सो प्रॉपर्टी वही अप्लाई होगी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 to a एफ ऑफ a माइनस एक्स डी एक्स. ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, ठीक है. सो आई इज इक्वल टू 0 to 2 x की जगह पे 2 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस एक्स डी एक्स, राइट. सो आई इज इक्वल टू 0 to 2 2 माइनस एक्स 2 माइनस 2 माइनस माइनस प्लस एक्स, ओके, डी एक्स. दिस टू गेट कैंसल, तो रूट एक्स इज नथिंग बट 0 to 2 2 माइनस एक्स इंटू एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं रूट एक्स की जगह पे. सो दिस इज इक्वल्स टू 0 to 2, यहाँ पे 2x पावर हाफ माइनस एक्स टू द पावर, यहाँ पे 1 एंड हाफ तो 3/2 डी एक्स, राइट. सो आई इज इक्वल्स टू हो गया 2 एज इट इज 0 to 2 एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स माइनस 0 to 2 एक्स टू द पावर 3/2 डी एक्स. सो आई इज इक्वल्स टू 2 एक्स पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 3/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 माइनस एक्स पावर 3/2 का 5/2 डिवाइडिंग बाय 5/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2, राइट. सो नाउ आई इज इक्वल्स टू यहाँ पे 2 इंटू ये हो जाएगा 2/3, 3/2 न्यूमेटर में लिखेंगे तो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2, सो एक्स पावर 3/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2 माइनस दिस वी कैन राइट एज अ 2/5 x पावर 5/2 लिमिट इज फ्रॉम 0 to 2. सो आई इज इक्वल्स टू हो गया हमारा 4/3. दिस वन इज 2 पावर 3/2 माइनस 0 माइनस 2/5 2 पावर 5/2 माइनस 0. 2 पावर 3/2 दैट इज नथिंग बट 2√2. सो आई इज इक्वल्स टू 4/3 इंटू 2√2 माइनस 2/5 2 पावर 5/2 तो √2 इंटू 2 पावर 2, राइट. सो 2 पावर 2 4, सो 4√2. सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 2 8√2 डिवाइडिंग बाई 3 माइनस 8√2 डिवाइडिंग बाय 5, ओके. सो एलसीएम लेना पड़ेगा. सो 8 5 जा 40√2 माइनस 8 3 जा 24√2 होल डिवाइडिंग बाई 3 5 जा 15, राइट. सो आई इज इक्वल टू हो जाएगा 40 माइनस 24, सो 16, तो 16√2 डिवाइडिंग बाय 15, ओके. तो ये हो गया हमारा आंसर 16√2 डिवाइडिंग बाय 15, दैट इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, 0 to 2 2 log sin x minus log sin 2x dx. So I is equals to 0 to pi by 2 log sin x minus log sin 2x dx. 2 log sin x and log sin 2x. log sin 2x, तो sin 2x को हम क्या लिख सकते हैं, 2 sin x cos x ऐसे लिख सकते हैं. सो आई इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे 0 to pi by 2 इंटू log sin x माइनस log sin 2x को 2 sin x cos x होल
dx, राइट। नाउ ये जो log है इसके अंदर 3 फंक्शन 2 sin x cos x, तो log a इंटू बी इंटू सी दैट इज नथिंग बट log a प्लस log b प्लस log c, ऐसे लिख सकते हैं। So now I is equals to this we can write as a 0 to pi by 2 log sin x minus log 2 minus because minus sign is there, right? तो अंदर वाले टर्म प्लस हो गए तो प्लस माइनस 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 log sin x माइनस log cos x dx। 2 log sin x माइनस log sin x तो कितना हो जाएगा log sin x वन टाइम, सो 0 to pi by 2 log sin x माइनस इसको पहले लिखता हूँ मैं log cos x माइनस log 2 dx, ठीक है। इसको हम कंसिडर करते हैं रिजल्ट नंबर 1। I इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 dx। नाउ फर्स्ट हमने जो क्वेश्चन के अंदर अप्लाई किया था वो प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 0 to pi by 2 या तो 0 to a f of x dx दैट इज नथिंग बट 0 to a f of a माइनस एक्स डी एक्स, अभी तक हमने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की वही। सो आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log साइन x की जगह पे pi by 2 माइनस एक्स माइनस log cos pi by 2 माइनस एक्स माइनस log 2 dx। यहाँ पे तो x है ही नहीं, राइट। सो आई इज इक्वल टू 0 to pi by 2 log साइन pi by 2 माइनस एक्स दैट इज नथिंग बट cos x माइनस log cos pi by 2 माइनस एक्स दैट इज नथिंग बट sin x माइनस log 2 dx। इसको हम कंसिडर करते हैं रिजल्ट नंबर 2। नाउ 1 एंड 2 दोनों को ऐड कर देते हैं, तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 तो i प्लस आई दैट इज नथिंग बट कितना हो जाएगा 2i इज इक्वल टू लिमिट सेम है तो 0 to pi by 2 अंदर डायरेक्टली दोनों को ऐड कर देता हूँ। तो फर्स्ट log sin x माइनस log sin x माइनस log cos x माइनस log 2 प्लस सेकंड रिजल्ट दैट इज log cos x माइनस log sin x माइनस log 2 dx प्लस log cos x माइनस log cos x माइनस log sin x प्लस log sin x एज इट इज कट हो जाएगा, राइट, प्लस माइनस होके। सो 0 to pi by 2 कितना बचेगा माइनस log 2 माइनस log 2 दैट इज द माइनस 2 टाइम्स log 2 dx, ओके। सो 2i इज इक्वल टू माइनस 2 बार 0 to pi by 2 log 2 भी बार ले लेते तो अंदर कितना बचेगा 1 dx, यहाँ पे 2 2 कैंसल। सो i इज इक्वल टू माइनस log 2 1 का इंटीग्रेशन x लिमिट इज फ्रॉम 0 to pi by 2। सो i इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाय pi by 2 माइनस 0। सो दिस वी कैन राइट एज अ माइनस log 2 मल्टीप्लाई बाय pi by 2 माइनस 0, सो pi by 2, राइट। सो फाइनल आंसर इज i इज इक्वल टू माइनस pi by 2 इंटू log 2। ये हो गया हमारा आंसर। सो आपको जो है वो सभी क्वेश्चन के अंदर प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, ठीक है। सभी क्वेश्चन प्रॉपर्टी के बेस पे ही है, डायरेक्ट आप इंटीग्रेशन करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। सो यू नीड टू अप्लाई द प्रॉपर्टी इन एवरी क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 आई इज इक्वल टू माइनस pi by 2 टू प्लस pi by 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। आई इज इक्वल टू माइनस pi by 2 टू प्लस pi by 2 साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस a to a f of x dx that is equals to 0 if function f is odd and function f is even then 2 times 0 to a, ऐसे हमने हमारे पास प्रॉपर्टी थी 2 times 0 to a f of x dx, राइट। अगर फंक्शन कैसा है इवन है तो कहाँ पे माइनस a to a f of x dx is equals to, राइट, एंड इज इक्वल्स टू 0 इफ फंक्शन इज ऑड। तो यहाँ पे जो फंक्शन दिया हुआ है दैट इज साइन स्क्वायर एक्स, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू चेक वेदर साइन स्क्वायर एक्स इज ऑड और इवन। साइन एक्स इज ऑड वो हमने देखा था वहाँ पे भी, राइट। एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करते हैं तो एफ ऑफ माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर ऑफ माइनस एक्स, वी नो दैट दिस इज नथिंग बट साइन ऑफ माइनस एक्स होल स्क्वायर, राइट। साइन ऑफ माइनस एक्स कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, बट इसका स्क्वायर करना है तो कोई भी नंबर हो स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव, तो एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ पे कितना हो गया प्लस साइन स्क्वायर एक्स हो गया, राइट। दैट इज नथिंग बट प्लस साइन स्क्वायर एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स इज इवन फंक्शन। कैसा फंक्शन है इवन।
So I is equals to minus pi by 2 to plus pi by 2 sin square x dx, which is equals to 2 times 0 to pi by 2 sin square x dx. ऐसा हम लिख सकते हैं. So I is equals to हो गया हमारे पास 2 times 0 to pi by 2 sin square x dx. Now sin square x को क्या लिख सकते हैं? 1 minus cos 2x by 2. सेकंड मेथड, वापिस प्रॉपर्टी अप्लाई करें 0 टू एफ ऑफ एक्स माइनस डी एक्स दैट इज इक्वल टू 0 टू एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स, वो भी अप्लाई कर सकते हैं. तो 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स डी एक्स. फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के अंदर कॉस था तो वहां पे हमने साइन कर दिया था, कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स, तो साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे साइन स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स. तो आई इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. इसको हम रिजल्ट नंबर 1 कंसिडर करते हैं एंड दिस वन इज अ रिजल्ट नंबर 2. दोनों को ऐड कर देते हैं. सो लिमिट सेम है 0 टू पाई बाई 2 0 टू पाई बाई 2. तो ऑन एडिंग 1 एंड 2 राइट. सो 2y इज इक्वल टू 2 प्लस 2 सॉरी 2 दोनों में सेम है. सो 2 टाइम्स 0 टू पाई बाई 2 अंदर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स. ओके, यहाँ पे 2 कैंसिल हो गया. सो आई इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर दैट इज नथिंग बट 1. तो 1 डी एक्स. सो आई इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x, लिमिट इज फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2. सो आंसर हो गया पाई बाई 2 माइनस 0. सो द आंसर इज आई इज इक्वल टू पाई बाई 2. दिस वन इज द आंसर. ठीक है, तो इस सेशन के अंदर यहाँ तक रखते हैं. फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12. नेक्स्ट सेशन से क्वेश्चन नंबर 12 से हम कंटिन्यू करेंगे. आपको प्रॉपर्टी याद नहीं है तो लिख के याद करो, बट प्रॉपर्टी कंपलसरी आपको याद करनी पड़ेगी और सभी क्वेश्चन एटलीस्ट 2 टाइम सोल्व करना है इसको, तभी आपको समझ में आ जाएगा. कोई भी क्वेश्चन देखे कि भाई इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी. फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन भी होगा कई सारे क्वेश्चन के अंदर, लॉगरिथमिक सिंप्लीफिकेशन भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से ही होगा. सो मैक्सिमम आपको प्रैक्टिस करनी है. ओके, सो फ्रॉम द नेक्स्ट सेशन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 12. Thank you.